السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انعام انصاری یونیورسل ٹاپک سے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ سلاٹر ہاؤس کے اندر نئے فارمر کو یا پرانے فارمر کو، موسٹلی نئے فارمر کی بات کریں گے، اس کو کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا یونیورسل ٹاپکس یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ بھائیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے چینل کے ذریعے انفارمیٹو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ بھائیوں کی جو فارمنگ ہے وہ آسان بھی ہوتی رہے، فائدہ مند بھی ہوتی رہے۔ تو سلاٹر ہاؤس کے اندر 3-4 قسم کے جو مسائل ہیں وہ درپیش آتے ہیں، جن میں سرفہرست جو مسائل پیش آتا ہے، مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نیا فارمر سلاٹر ہاؤس کے اندر اپنے بچڑے لے کر جاتا ہے تو وہاں پر بچڑوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بچڑے 2 دن ذبح نہیں کیے جاتے۔ تو جو نیا فارمر ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے بچڑے 2 دن ذبح بھی نہیں ہوتے، اور جو بچڑے 2 دن سلاٹر ہاؤس میں کھڑے رہتے ہیں 2 دن ذبح نہیں ہوتے، چونکہ وہ پیچھے فارم سے گئے ہوتے ہیں، فارم کی خوراک اور ہوتی ہے، فارم پہ ونڈے کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، سیلج کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سلاٹر ہاؤس کے اندر نہ تو ونڈا ملتا ہے آپ بھائیوں کو، نہ سیلج ملتا ہے، وہاں پر سبز چارہ جو ہے وہ ملتا ہے تو یا توڑی ملتی ہے۔ تو جس وجہ سے جانور جو ہیں وہ وزن بڑھانے کے بجائے وزن کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جانوروں کی جو تیاری ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جانور، تو جس وجہ سے فارمر کا خاصا زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر میٹ کی پرسنٹیج، جہاں پر ایک بچڑے کا 100 کلو گوشت نکلنا ہے وہاں پر جو گوشت ہے وہ نکلتا ہے 96 کلو 97 کلو، 3-4 کلو گوشت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو فی بچڑے میں 1500-2000 کا لوس نئے فارمر کو یہ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی سلاٹر ہاؤس سے بات کریں، کسی ایکسپورٹر سے بات کریں، اس سے یہ بات کنفرم کریں جی ہمیں وہ ٹائم دیں جس ٹائم پر ہمارے جو بچڑے ہیں وہ آتے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ملنے کے بعد، ریسٹ کرنے کے بعد وہ سلاٹر ہو جائیں۔ تو ان سے یہ بات انشور کر لیں کہ ہمارے بچڑے آئیں فارم پہ، فیکٹری میں بچڑے پہنچیں، جب پہنچ جائیں ان لوڈنگ ہونے کے بعد جانور ریسٹ کریں، چارہ وغیرہ کھائیں، ایک دفعہ تازہ دم ہو جائیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی آپ ریسٹ دیں۔ آپ اپنے سفر کے لحاظ سے دیکھ لیں، اگر جانور زیادہ سفر کر کے آئے ہیں تو آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ریسٹ دیں، 12 گھنٹے کی ریسٹ دیں، اور 12 گھنٹے کی ریسٹ کے بعد آپ جانوروں کو ذبح کروا دیں۔ اگر آپ کا فارم نزدیک ہی ہے، فیکٹری کے سفر تھوڑا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کا سفر ہے، تو پھر بے شک آپ جو ہے ان کو ریسٹ نہ دیں، آج جاتے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ جانور ذبح کروا دیں، تو آپ کا کوئی جو ہے نا ایوریج میں فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو نیا فارمر ہے جو وہ بچڑے لے کے جاتا ہے 8 گھنٹے ریسٹ دینے کے بجائے، بعض کا یہ ہوتا ہے اس کا سفر ہوتا ہے زیادہ، ریسٹ دینے کے بجائے جانور ان لوڈ ہوتے جاتے ہیں، تو جو ایکسپورٹر ہوتا ہے یا فیکٹری مالکان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سلاٹنگ شروع کروا دیں۔ اگر تب جاتے ساتھ سلاٹنگ شروع ہو جائے پھر بھی فارمر کا نقصان ہے، اگر جانور 2 دن کھڑے رہیں پھر بھی فارمر کا نقصان ہے۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ ڈیل کریں، جس کو آپ مال سیل کریں، اس سے یہ بات کنفرم کریں جی ہمارے مال جب پہنچے گا اس کے اتنے ٹائم پر سلاٹر ہونا چاہیے، یا ہمیں وہ آپ ٹائم دیں کہ جب ہمارے جانور آتے ساتھ آپ ذبح کر لیں۔ تو جو وہ آپ کو ٹائم دیں گے، آپ اپنے سفر کا اندازہ لگائیں کہ سفر کتنے گھنٹے کا ہے، اس حساب سے آپ اپنے جانور جو ہے وہ فیکٹری میں پہنچائیں۔ اگر آپ کا سفر زیادہ ہے تو آپ ان کے ٹائم کے مطابق 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے جانور جو ہیں وہ فیکٹری میں پہلے لے جائیں، تاکہ آپ جانوروں کو وہاں پر کھڑا کریں، ان کو پانی پلائیں، ان کو سبز چارہ دیں، ان کو خوراک دیں اور جانوروں کو تازہ دم کریں۔ اگر آپ کا سفر تھوڑا ہے تو جو ٹائم وہ آپ کو دیں آپ اسی ٹائم کے مطابق فارم سے جانور ان لوڈ کریں اور اس ٹائم پہ فارم سے جانور لے جائیں، فیکٹری لے جائیں، فوراً ذبح ہو جائیں۔ تو اگر آپ کے جانور فوراً ذبح نہیں ہوتے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، فارمر کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ میری فیکٹری مالکان سے بھی یہ گزارش ہے اور ایکسپورٹر سے بھی گزارش ہے کہ جو ٹائم آپ دیں اس ٹائم کے مطابق جو فارمر ہوتا ہے، خاص طور پر جو چھوٹا فارمر ہوتا ہے، نیا فارمر ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ کمٹمنٹ کریں اس کے مطابق آپ جانور ذبح کریں تاکہ چھوٹے فارمر کا نقصان نہ ہو۔ بڑے فارمر کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا، بڑے فارمر یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ جب بھی ڈیل کرتے ہیں ایکسپورٹر کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ کلیئر کرتے ہیں، پھر اپنے جانور جو ہیں وہ فیکٹری لے کر جاتے ہیں، وہ سلاٹری کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ آتا ہے نئے فارمر کے ساتھ، زیادہ تر سلاٹر ہاؤس میں مسائل نئے فارمر کے ساتھ آتے ہیں۔ جو دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب نیا فارمر فیکٹری میں مال لے کر جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ 20 بچڑے لے کر جاتا ہے، تو جو ایکسپورٹر ہوتا ہے یا فیکٹری مالکان ہوتے ہیں وہ 20 جانوروں میں سے 15 جانور
12 जानवर, 16 जानवर, 17 जानवर वो निकाल लेते हैं। बाकी वो जानवर कहते हैं जी ये हमारे जानवर हमारे पास नहीं है, ये जानवर आप वापस ले जाएं। जब अगर नए फार्मर को वहां पर यह कहा जाता है जी आपके 15 जानवर हम ज़िबा कर रहे हैं और बाकी जो 5 जानवर हैं वो हम ज़िबा नहीं कर सकते, उनका साइज छोटा है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो नस्ल वाइज अच्छे नहीं है, तो छोटा फार्मर उसके पास वहां पर कोई रास्ता नहीं होता कि वो उन 5 जानवरों को किस साइड पर लेकर जाए। फिर उसके बाद उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो कैरेज ज्यादा भरे पैसे भरे और अपने जो जानवर हैं उनको वो वापस ले जाए फार्म पे, या फिर वो किसी और से वहीं पर डील करे या उसी भाई को जिसने उसने जानवर दिए होते हैं उसके साथ दोबारा डील करे और अपना रेट कम करे, अपना नुकसान करे, तो उन्हीं को दोबारा जानवर दे दें। तो इसलिए आप जब भी नए फार्मर से मेरी ये गुजारिश है, जब भी आप फैक्ट्री माल लेकर जाएं उनसे पहले पूछें कि जी आप जो हमारे से वजन लेंगे जानवरों का वो कितने केजी वाला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 250 केजी के जानवरों की कमिटमेंट हुई है एक्सपोर्टर के साथ, ये नए फार्मर भी ये गलती करते हैं कि वो जानबूझकर छोटे जानवर भी ले जाते हैं या जो कमिटमेंट की होती है उस कमिटमेंट से हट के जानवर ले जाते हैं। आप जब भी डील करें, आपके अगर 250 केजी वाले जानवरों की डील हुई है तो आप 250 केजी वाले जानवर ही लेकर जाएं, 240 केजी वाले ले जाएं। 10, 20 किलो, 15 किलो ऊपर नीचे हो जाता है। 10 आप 240, 235 केजी से लेकर 250, 270 केजी वाले ले जाएं। जब आप छोटे जानवर लेके जाते हैं तब मसला आता है। अगर बड़े जानवर ले जाएं, 250 केजी की कमिटमेंट हुई है, आप 300 केजी वाला जानवर ले जाएं तो वो स्लाटर हाउस वाले जो है वो खुशी से ज़िबा करते हैं, स्लाटर करते हैं, क्योंकि वो उनको बड़े साइज का कोई इश्यू नहीं होता। असल जो इश्यू होता है वो छोटे साइज का होता है। तो इसलिए अगर आप 250 केजी वाली बात करके जाते हैं तो आप जानवर 250 केजी से ऊपर वाले लेके जाएं, छोटे वाले ना लेके जाएं, क्योंकि वहां जब आप फैक्ट्री में पहुंचेंगे तो मसला एक्सपोर्टर को नहीं होगा, मसला फैक्ट्री के मालिक को नहीं होगा, मसला आपको होगा। आपके जानवर जो हैं वहां पर खड़े रहेंगे, 2-3 दिन खड़े रहेंगे, आपके जानवरों का वजन भी कम होगा और आपको फिर रेट भी कम मिलेगा और आपको वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस बात को जहन में रखें, जिस जानवर का जिस साइज की आपसे बात की गई है वही जानवर लेके जाएं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी जिस नस्ल की बात हुई है, नस्लें वहां पर कोई नहीं इतनी लंबी चौड़ी चलती, बस मसला ये आता है जो फ्रीजियन बछड़े होते हैं उनकी बात अलहदा से करनी पड़ती है, वो अलहदा से बताना पड़ता है जी हमारे पास फ्रीजियन बछड़े हैं या देसी बछड़े हैं, साहिवाल, क्रॉस, चोलोसन, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है। फ्रीजियन जो बछड़े होते हैं उनकी डिमांड स्लाटर हाउस के अंदर कम होती है, उनका रेट स्लाटर हाउस के अंदर कम होता है। नया फार्मर जो होता है वो जब मंडी से परचेजिंग करता है तब वहां पर भी वो फ्रीजियन बछड़े खरीद लेता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता। तो जब वो सेल करने के लिए जाता है तो उसके पास फ्रीजियन बछड़े होते हैं, वो फैक्ट्री वाले को बताता है जी मेरे पास इस साइज के बछड़े खड़े हैं, इतने खड़े हैं, वो कहते हैं जी ले आए। जब वो वहां पर ले जाता है तो स्लाटर हाउस वाला देखता है कि ये 20 बछड़े लेकर आए, 20 बछड़ों में से 10 बछड़े तो वलैती हैं, 10 बछड़े सही हैं। वो कहते हैं जी ये वलैती बछड़े हमारी समझ में नहीं आते, ये आप बछड़े ले जाएं और जो देसी बछड़े हैं वो आप खड़े रहने दें। तो जो फार्मर नया होता है उसको झटका लगता है, जहरी बात है, उसको नुकसान होता है। बछड़े अगर ज़िबा नहीं होते वो वापस लेके आता है तब भी नुकसान होता है। अगर वो बछड़ों को कम रेट पर देता है तब भी उसकी समझ से बात नहीं गुजर रही होती, वो आप उसकी समझ से बाहर हो रही होती है बात। तो ये भी नए फार्मर को वहां पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज का भी नए फार्मर को खासा लिहाज और खासा ध्यान करना चाहिए, हर चीज को मद्देनजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फैक्ट्रियों वाले ज्यादती करते हैं, एक्सपोर्टर ज्यादती करते हैं। एक्सपोर्टर जो होते हैं, फैक्ट्रियों वाले वो जो होते हैं, उनके साथ अगर आप डील कर रहे हैं उनसे हर बात आप पहले वाज़ेह कर लें, हर बात को आप खोल के कर लें, तो फिर फैक्ट्रियों वाले जो होते हैं वो उनको पता होता है कि इस बंदे ने हमारे साथ बड़ी आसान लफ्जों में सीधी खुली बात की है, तो वो फैक्ट्री वाले भी फिर आगे पीछे नहीं करते। तो ये 3 जो मसाइल हैं, ये नए फार्मर को फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो मसला आता है, बास फार्मर क्या करते हैं, चौथा मसला जो होता है, वो समझते हैं कि फैक्ट्री के अंदर हर किस्म की लेबर होती है, वो जानवर गाड़ी में लोड करवाते हैं, खुद साथ चले जाते हैं और वहां पर जब जानवर उतारने के लिए टाइम आता है या जानवरों को खुराक देने के लिए टाइम आता है तो उसके पास कोई वर्कर नहीं होता। तो जब भी आप फैक्ट्री माल लेकर जाएं, अपने फार्म से वर्कर अपने साथ लेकर जाएं। आपके जानवरों को वहां पर आपने संभालना है, फैक्ट्री वालों ने नहीं संभालना।
जानवर आपके हैं, लड़का वर्कर आपका होगा, फैक्ट्री वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जानवरों की वहां पर केयर नहीं होगी तो जानवर आपके वजन कम करेंगे, फैक्ट्री वालों के जानवर कम वजन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो तोल लेना है ज़िबा होने के बाद। तो इसलिए वर्कर का साथ होना फैक्ट्री पर बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है। अगर आप वर्कर साथ नहीं लेकर जाएंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके जो जानवर हैं वो वजन कम कर जाएंगे और आपको नुकसान होगा। इसके अलावा एक बात मैं वाजे करता जाऊं, स्लाटर हाउस के अंदर मसाइल के साथ साथ जो चीजें मिलती हैं, वहां पर जानवरों को खड़ा करने के लिए प्रॉपर शेड बनाए जाते हैं। प्रॉपर शेड होते हैं, वहां पर खुरलियां बनी होती हैं, पानी की होदियां बनी होती हैं, हर चीज बनी होती है। तो वहां पर जानवर खड़ा करने की मुकम्मल सहूलियात होती हैं। जितने भी जानवर हों, अलहदा अलहदा पार्ट बने होते हैं, अलहदा अलहदा हिस्से बने होते हैं। हर फार्मर अपने अपने पार्ट में, अपने अपने हिस्से में अपने अलहदा जानवर खड़े कर सकते हैं। वहां पर यह नहीं होता कि जानवर मिक्स हो जाते हैं। हाँ, आपको वहां पर ख्याल जरूर रखना होता है, बाड़े साथ साथ होते हैं, कि आपका जानवर एक बाड़े से निकलकर दूसरे बाड़े की तरफ ना जाए। तो उसके लिए वर्कर आपका साथ होना जरूरी है। तो वहां पर प्रॉपर इंतजाम किया जाता है। बाज फैक्ट्रियों वाले हैं वो तोड़ी देते हैं आपको, बाज फैक्ट्रियों वाले तोड़ी नहीं देते। आपको तोड़ी भी बाहर से परचेज करना पड़ती है, आपको सब्ज चारा भी बाहर से परचेज करना पड़ता है, आपको जो है चोकर बंडा वगैरह वो हर चीज बाहर से परचेज करनी पड़ती है। तो आप जो नए फार्मर हैं या पुराने फार्मर, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि आपके फार्म पर जो खुराक चल रही होती है, जो जानवर खुराक खा रहे होते हैं, वही खुराक आप गाड़ी में रखें, वही खुराक आप अपने साथ ले जाएं। वंडा जो होता है, चोकर, जो भी आप चीज चला रहे होते हैं, ताकि जानवर की जाके फैक्ट्री में जाके खुराक चेंज ना हो और उसका जो है वो ग्रोथ लेवल वो कम ना हो, बल्कि उसी लेवल से वो ग्रोथ करता रहे और उस जानवर कमजोर ना हो। तो जो खुराक आपके फार्म पे चल रही होती है, वही खुराक आप फैक्ट्री में लेकर जाएं, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। तो बाकी मैंने बता दिया, वहां पर सब्ज चारा वगैरह कोई चीज नहीं मिलती। बाज फैक्ट्रियों वाले बहुत कम हैं, आप कह लें 90% फैक्ट्रियों वाले कोई चीज नहीं देते हैं। सारी चीजें आपने बाहर से परचेज करनी है। 10% फैक्ट्रियों वाले हैं वो हर चीज देते हैं, थोड़ी बहुत तूड़ी दे दी, सब्ज चारा दे दिया, तो बाकी चीजें वंडा वगैरह वो आपको बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों को स्लाटर हाउस के जो मसाइल हैं और जहां वहां पर जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो एक मुख्तसर से स्पेस के अंदर मैंने आप भाइयों तक पहुंचाई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है वो भाइयों को स्लाटर हाउस के मसाइल के हवाले से भाइयों के लिए, फार्मर के लिए काफी हद तक मुआवन होगी, काफी हद तक मददगार साबित होगी। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, ये जो चीजें मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, इन चीजों का खास ख्याल रखें। इन चीजों के मुताबिक आप एक्सपोर्टर के साथ, फैक्ट्री मालकान के साथ डील करें और अपने इन चीजों में जो मैंने वर्कर का कहा है, वर्कर साथ लेकर जाएं। जो जो चीजें वीडियो के अंदर की गई हैं, बताई गई हैं, उन चीजों का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको स्लाटर हाउस में किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं उम्मीद यही करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान इनाम अंसारी को यूनिवर्सल टॉपिक से दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआओं में हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।